Now it's time to welcome our special guest, Mr. Avanish Srivastav, a legal luminary and managing partner of Nax and Associate, India's only law firm providing litigation support services in over 650 cities. An expert in pan-India litigation, corporate consulting, restructuring, agro-litigation, contract management, startup advisory, IBC, agricultural law, arbitration, merger, and POSH, Mr. Srivastava is at the forefront of legal innovation. In addition to managing clientele and shaping his strategic vision of his firm, he is a regional council member of NIRC of ICSI and a regular speaker at various prestigious platforms. With a decade of experience, he has been recognized with awards like the Supporting Pillar Award and 40 Under 40 Rising Star Award. Please welcome, for providing us the vote of thanks, Mr. Avanish Srivastav. Thank you so much. Apart from the vote of thanks, I have also assigned 5 minutes to speak also. So please be here. Honorable Chief Guest, B.K. Agarwal sir, Guest of Honors, Sanjay Jindal ji, and GST Guru, and I can say the magician, Bimal Jain sir, Abhishek Rajaram ji, Sangam Agarwal ji, Regional Council Member, NIRC of ICAI, Madhuri Kashyap ji, Regional Council Member, NIRC of CMA, and founder of International Navodaya Chamber of Commerce, CMA Sandeep Kumar ji, and team of International Navodaya Chamber of Commerce. I would like to congratulate Sandeep Kumar ji and team International Navodaya Chamber of Commerce for organizing this kind of the events and taking the effort to create a platform where all the three premier institutes members can come and discuss the knowledge sharings. So thank you, Sandeep ji. I can say one thing that proudly that we, the Chartered Accountant, Company Secretary and the CMA are the backbone of this Indian economy. And only we people can help the Indian economy to reach the level of third largest economy of world. So for this, a few things are required. So this is a GST related topic, and we discussed last 2 hours and listened the luminaries. So I just remember 6 or 7 years back, जब GST आया था बिमल सर, तो मैं एक्चुअली छोटे गांव से बिलोंग करता हूं और वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे तो और बिजनेसमैन भी थे. तो बात वहाँ पे होती थी जीएसटी, जैसे अभी कोरोना आया था ना वैसे जीएसटी आया था. समझ ही नहीं आता था कि है क्या ये. सब पागल हुए रहते थे कि जीएसटी आ गया, कैसे डील करेंगे. छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन और खास करके बिल्कुल छोटे बिजनेसमैन. कुछ नया स्टार्ट करना है तो पहले जीएसटी सर्टिफिकेट लाओ, तभी तुम्हारा वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी तुम धंधा कर पाओगे, बिजनेस कर पाओगे. बड़ी मुसीबत आई, बट उस मुसीबत में कोई निकाल कर लेकर आया है इस इंडियन इकोनॉमी को और इस बिजनेस को. तो आप सब, हम सब लेकर आए हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएमए और सीएस का रोल बहुत बड़ा रहा है और उनके साथ एक किसी और का रोल भी रहा है. अभी मैंने नाम लिया मैजिशियन. तो आपको बताऊं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सब जानते होंगे. आपको पता है जीएसटी में भी कुछ हुआ था. पता है किसको कुछ हुआ था? नहीं पता है, मैं बता रहा हूं. एक ऐसा मैजिशियन है यहां पे जिन्होंने एक ऐसा मुहिम उठाया कि 4,500 प्रोफेशनल को बुला लिया. बिमल जैन सर. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है बिमल जैन सर का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का. एक साथ इकट्ठा 4,500 लोगों को ट्रेनिंग देने का. मेरे ख्याल से 2018 की बात है सर. और एक ऐसा अकेला नहीं हुआ था. मुझे लगता है कि सर ने आज तक, मुझे लग रहा है 5 से 10 लाख लोगों से ज़्यादा कहीं लोगों को ट्रेन किया होगा. और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम में से, आप में से और बहुत जगह, जहाँ पे लोग आज भी एजुकेट कर रहे हैं. और जब हाथ उठता है तो इतना ही कम नंबर होता है. पीछे सर सीएस इंस्टीट्यूट में भी आए थे, बड़ा प्रोग्राम था, 500 लोग थे.
वहाँ भी हाथ ऐसे ही उठा था। तो क्या हम अपॉर्चुनिटी हम छोड़ रहे हैं क्या? जब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया 1956 के बाद 2030 आया, इतने क्रिटिकल कि लग रहा कितना पढ़े, कंपनी सेक्रेटरी की तो जान निकल गई, बट बाद में मजा भी आया, सबसे ज़्यादा पैसा भी मिलने लगा वहाँ से। वैसे ही जीएसटी में सर आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कहीं एम्प्लॉयमेंट दिया है किसी ने तो जीएसटी ने दिया है। ग्रेजुएट्स अकाउंटेंट ढूंढते थे और सिर्फ क्या करते थे, टैली में एंट्री और अकाउंट्स का काम करते, जो ग्रेजुएट होते थे 12th पास 10th पास। आज के डेट में 12th पास के लिए भी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ नहीं भैया जीएसटी का ही काम करो। अब तो मैं अकाउंटेंट भी हायर करना होता है कई बार, तो होता है क्या काम किया है, तो जीएसटी किया है, अब बाकी सब नहीं और कुछ नहीं किया। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मुझे लगता है कि सर ने जिस तरीके से बताया कि हम सबको ना स्टार्ट तो करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। 2-3 चीज़ें हमने और डिस्कस किया कि जेल के अंदर जाना अभिषेक जी ने बताया, जेल के बाहर जाना विमल जैन सर ने बताया, लेकिन जेल से बाहर जाने के लिए कुछ और अभी नया आ रहा है और जहां हम सबको साथ इकट्ठा होकर कुछ करना पड़ेगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल बनने वाला है, कॉन्स्टिट्यूट होने वाला है, और इससे पहले 2 चीज और कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, डीआरटी और एनसीएलटी। क्या हुआ वहां पे? मैं अभी सर से बात कर रहा था, वहां पे शायद हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए और इसका अफसोस है। इस तीनों इंस्टीट्यूट को मुझे लगा रहेगा और हम सब कोशिश कर भी रहे हैं, बट यहां हमें छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से हम सब ने हैंड होल्डिंग करी थी, जीएसटी जब आया था और पूरे इंडस्ट्री को हमने बताया, पूरे बिजनेस को बताया, छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को हमने बताया कि जीएसटी क्या है, और आज रेगुलेटेड है, कुछ भी है, कम से कम जीएसटी का काम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। ये जो डिपार्टमेंट वाला इशू है, देखिए ये तो कभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्यों नहीं जाने वाला है सर बताएंगे कभी दोबारा, कि वहां ऐसे लोग बैठे हैं कि ये सब कभी सॉल्यूशन शायद नहीं होगा, बट क्या है कि बिजनेस चलना है और इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनाना है। तो बनाना है तो हमने जो पार्टिसिपेट किया था कि जीएसटी दुनिया को बताया था, इंडिया के सारे लोगों को हमने बताया और आज रेगुलेट करा दिया था। तो अब बारी ये है कि जेल से बाहर लेके आना है तो कैसे हमें डिफेंड करना है, ये भी सिखाना है हमें, और हमें ये भी सीखना है और सिखाना है कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। जो जीएसटी ट्रिब्यूनल आ रही है वहाँ पे हम सबका रोल आगे हो, ना कि कोई और प्रोफेशनल। इन तीनों बॉडीज एक साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप करें। इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी लगातार कीजिए इस पे वर्कशॉप्स, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें। सिंपल है, वो भी बड़ी सारी चीज़ हमने पढ़ाई तो करी है। हाउ टू डिफेंड अभी सर ने बताया, कैसे प्लेंट बनाना है, कैसे रिप्लाई बनाना है, कैसे रिजवाइंडर बनाना है, क्या कोड क्राफ्ट होगा, यही सब तो सीखना है सर। ये सीख गए पर हम वहाँ पे पैसे कमाने लगे। अल्टीमेटली हमने सीएस, सीएमए और आईसीडब्ल्यू ये सीएस किया क्यों है? इसीलिए तो किया था, पैसे कमाने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि ये वाला पार्ट तो हम लोग एटलीस्ट स्टार्ट करें। और सर ने ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करी थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हमने जीएसटी के टाइम में किया था, जब आया था, जब दुनिया को पता नहीं था, हमने बताया था, हमने इम्प्लीमेंट कराया था और आज के डेट तक सिस्टम अच्छा हुआ था। अब जीएसटी ट्रिब्यूनल में भी हम लोग प्रैक्टिस करें और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करें अपने आप को, आने वाली जनरेशन्स को। और जो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एक्चुअली हम लोग हैं, हम लोग क्या है, फाइनेंशियल डॉक्टर ही तो है। तो फाइनेंशियल डॉक्टर का जो रोल है कि हमें सही तरीके से क्लाइंट को बाहर लेके आना है, अच्छे से लेके आना है, वो भी एक ट्रिब्यूनल का सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे पास है और हमें करना चाहिए। तो जो भी इसके लिए कोर्सेज हो रहे हैं या जो भी हमें पढ़ना है या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सर ने कहा प्रैक्टिस करने से ही होता है, हम कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो करना पड़ेगा और करना हमें स्टार्ट भी करना चाहिए। और एक चीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तीनों बॉडीज के मेंबर भी हैं हम लोग यहाँ पे, बार काउंसिल बड़ी स्ट्रांग होती है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, एसोसिएशंस में, और एनसीएलटी में भी बना, वहाँ भी मैंने कहा डीआरटी में भी बना। तो यहाँ भी कुछ हम लोग पहले से स्टार्ट कर लें अपनी एसोसिएशन, तो शायद हम एक दूसरे को अच्छा ट्रेन कर पाएंगे और वहाँ पे भी हम लोग लीडर साबित होंगे। तो थैंक यू सो मच वीके अग्रवाल सर, विमल जैन सर और अभिषेक राजाराम जी, और आप सबको थैंक यू यहाँ आने के लिए और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और थैंक यू संदीप जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।